Newsbreak coming in, viewers. India Today has now accessed the ED supplementary charge sheet, the Enforcement Directorate's supplementary charge sheet against actor Jacqueline Fernandez. The ED has countered Jacqueline's claims, which have been many. The biggest of it was, why was Jacqueline made as an accused while other actors made, like Nora Fatehi, a witness? The ED has responded saying Jacqueline constantly changed her statement, that she did not reveal her links to the accused, Pinky Rani. She lied about proceeds of crime she received. The proceeds of evidence collection still on. She wiped off her phone records after Sukesh's arrest. Jacqueline has now been summoned by the Delhi Police's Economic Officers Wing. Trouble only mounting for the actor. Will she be arrested? Because that's the big question. But the ED now responding to the charges that were laid by Jacqueline Fernandez, which primarily were that why has she been made the accused where she was the victim herself, is what she says. And other actors like Nora Fatehi have actually been made a witness. She should have been made a witness. In the beginning, she was a witness, and later it was changed to an accused. What led to this change by the ED? The ED has elucidated it, primarily stating that the actor did not quite cooperate, changed her statements all the time, wiped out her phone records, didn't reveal her links to accused Pinky Rani. Let's listen in to the charges that were leveled by Jacqueline. See, the Delhi police has registered the predicate offence, the main offence in this matter. It is but natural for the investigating agency to call her for a statement. But definitely, if you look at the charge sheet filed by the Delhi police in the matter, wherein the other accused have been named as accused, not Jacqueline, she will be a witness to these proceedings, not an accused. We will be physically be present before the court, but we'll follow the guidelines of the Honorable Supreme Court, wherein the recent judgment, Honorable Supreme Court says that if the accused has cooperated with the investigation before the charge sheet has been filed, which in this case Jacqueline has gone to the Enforcement Directorate office on various occasions. Whenever she was called, she has appeared. She has provided all the documents, all the evidences. Fortunately, she was never arrested. Now the charge sheet has been filed, so she will appear before the Honorable Court and seek bail. I want to cut across to my colleague Munish Pandey, who's following all the developments that are coming in from the Enforcement Directorate in this case. You know, Munish, the charge that has been leveled by Jacqueline is, how was it that she was changed from witness to accused, while other actors like Nora Fatehi continue to remain the witness? What does the ED say? Well, Preeti, as far as Jacqueline Fernandez is concerned, remember what the Enforcement Directorate has charged Jacqueline in this charge sheet is that in the month of February, 1 month after she was speaking to Sukesh Chandrasekhar under a wrong identity, a month after, in the month of February, she got to know that who Sukesh Chandrasekhar is. She got to know about the past history of Sukesh Chandrasekhar, basically that he is a criminal. But in spite of the fact that she was aware of Sukesh Chandrasekhar's past criminal record, she continued speaking to Sukesh Chandrasekhar, and not only she continued having conversation over phone calls or video calls and physical meetings, but also she continued taking gifts for her as well as for family members. So that is the charge number one. Second, what they have alleged that Jacqueline Fernandez has played a very important role along with Sukesh Chandrasekhar in laundering of money. And the third and the basic charge is that she is beneficiary of proceeds of crime. So on the basis of these allegations, the ED has filed the charge sheet. A cognizance has been taken by the court, but at the very same time, the strongest defense of Jacqueline Fernandez is that she has returned the money which was gifted by Sukesh Chandrasekhar, that is 7.7 crore has been returned to the Enforcement Directorate. As far as taking gifts is concerned, taking gifts is not a crime because she is not the one who extorted money. So that is a strong defense which Jacqueline has at this point of time. The next hearing is going to be procedural, where she will be granted bail. But later on, the lawyers of Jacqueline Fernandez will be filing for a discharge in the case because they think that their case against Enforcement Directorate's charge sheet is very strong. Munish, is there a possibility of an arrest now that a charge sheet has been filed against Jacqueline?
Yeah, well, Preeti, I have spoken to several senior officials who are part of the investigative team looking after this case. What they have told me that there is no plan of arresting Jacqueline Fernandez at any given point of time. They wanted to file a charge sheet based on the evidence which they have. Earlier, she was a witness in the case, but later on, when they recorded statement of several other key people, when they confronted Jacqueline with Sukesh Chandrasekhar, they decided to make her accused in the case, based on which a charge sheet has been filed. But as of now, there is no plan of arresting Jacqueline Fernandez. Whenever a charge sheet is filed, court takes the cognizance, and once the cognizance is taken, it is procedural that on the next day, the accused has to appear physically, and on the very same day, the person is granted bail. This is procedural, and that is what is going to happen on September 26th, when Jacqueline Fernandez will be appearing before a designated court in Delhi as far as this case is concerned. Manish, appreciate you joining us. The latest news break coming in there. We're going to keep getting our viewers as and when the information filters in. Manish Pandey getting you the latest lowdown on what the ED has said, especially after the charge sheet which has now been filed against Jacqueline Fernandez. Clearly more trouble brewing in for the actress. All right, viewers, let's cut across right now to the other big development that has been taking place through the course of many days, and that is the Aam Aadmi Party and the BJP dangle only getting dirtier from studios. It's now gone down to the streets. चुनौती देता हूं आपको। सौरभ भारद्वाज जी, कल 11 बजे अभी मैंने एक और आप प्रवक्ता को कहा, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, ये देखिए 500 नए स्कूल बनाएंगे, ये आपके मैनिफेस्टो का 19 नंबर का दावा है। 500 स्कूल, मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचूंगा, 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे आज तक पे अंजना ओम कश्यप के शो पे। चुनौती मंजूर है, बताइए। कौटिल्य स्कूल चिराग एंक्लेव कैलाश 1 में मिलिए 11 बजे, और वो नहीं, उसके अलावा बहुत सारे स्कूल दिखाऊंगा, एक नहीं बहुत सारे दिखाऊंगा। The Aam Aadmi Party versus the BJP dangle, getting downright dirty. Threats made in the studio, now acted upon the streets of the national capital. BJP's Gaurav Bhatia versus Aam Aadmi Party's Saurabh Bhardwaj. Location, outside Kautalya Vidyalaya, South Delhi, 11 a.m. Wednesday. The challenge was thrown in our studios by Aam Aadmi Party to the BJP to conduct a reality check on 500 schools claimed to be opened by the Delhi government. मैं कल 11 बजे आप जहां ट्वीट करेंगे वहां पहुंचूंगा, 500 स्कूल का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट दोनों भाई मिल के देंगे आज तक पे अंजना ओम कश्यप के शो पे। चुनौती मंजूर है, बताइए। The challenge was accepted by Gaurav Bhatia, BJP spokesperson, and the dual date, today, Wednesday, 11 a.m. Saurabh Bhardwaj showed Gaurav Bhatia school number 1, but Mr. Bhatia was unhappy. The second school reality check. The video war escalated with Mr. Bhardwaj replying to the two videos released by Mr. Bhatia. भाटिया जी ने क्या कहा, आप तो इनका वीडियो चलाइए। भाटिया जी ने कहा दोनों मिलकर निरीक्षण करेंगे, और ये चुनौती खत्म नहीं है, चुनौती आज भी तैयार है। जब भाटिया जी चाहें, जिस दिन मन करे उस दिन वो बता दें, उनको सारे स्कूलों के अंदर निरीक्षण कराएंगे, मगर भागने नहीं देंगे। From liquor policy gate to the new scam allegations by the BJP that the Aam Aadmi Party allegedly scammed the people by counting toilets as classrooms when it says it built 500 new schools. And this bitter political battle playing out on the streets of the national capital. Bureau Report, India Today. All right, viewers, all of this has taken place in a matter of just 24 hours. This was a debate which was happening on our sister channel, Aaj Tak, where an open challenge was thrown by Saurabh Bhardwaj saying, you come and look at a school in Delhi. Well, the BJP spokesperson, Gaurav Bhatia, accepted it. He went there, tried to see the school. The first one he saw, he was unhappy, said the building was old. The other one, the building was actually getting constructed. So he says the school is only getting constructed
On paper, you have shown it as it's built. Of course, there were other, supporters of the Aam Aadmi Party along with Saurabh Bhardwaj, and it ended acrimoniously. What we're going to do is we're going to bring both the parties back into the studio. I have Ramesh Buduri, Lok Sabha MP, Bharatiya Janata Party, who's joining us, as well as Akshay Marathe, spokesperson, Aam Aadmi Party. बिधूरी जी, दिक्कत क्या है? आम आदमी पार्टी कह रही है, पहले तो आप कहते हैं कि कोई स्कूल नहीं बने, जब आम आदमी पार्टी कहती है कि 500 स्कूल बने हैं, फिर आप कहते हैं कि ये स्कूल में क्लास नहीं है, टॉयलेट है। प्रीति जी, आम आदमी पार्टी से गौरव जी की जो बात हुई है, वो 500 नए स्कूल बनाने का जो प्रॉमिस किया था मिस्टर केजरीवाल जी ने, उसकी बात हुई थी। गौरव भाटिया जी उनके ट्रैप में आ गए। गौरव भाटिया जी को यह सोचना चाहिए था, ग्रेटर क्लास जैसी जगह में स्कूल दिखा रहे हैं जाकर, क्या ग्रेटर क्लास में गरीबों के बच्चे रहते हैं? क्या गरीबों के बच्चे रहते हैं बदरपुर के अंदर, संगम विहार देवली के अंदर, गरीबों के तुगलकाबाद के अंदर, आयानगर के अंदर, भाटी माइंस के अंदर, और उन स्कूलों को दिखाएं। अगर आपने 1000 स्कूलों में 50 स्कूलों की डेंटिंग पेंटिंग कराकर और उनको आप पिक्चर देकर न्यूयॉर्क टाइम्स में पैसे देकर छपवा रहे हैं, ये दो तरह का भ्रष्टाचार है प्रीति जी। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम देकर अगर सुन लेंगे तो, एक भ्रष्टाचार है कंस्ट्रक्शन को लेकर और एक भ्रष्टाचार है बच्चों के एडमिशन को लेकर। जब 2009-10 में शीला जी मुख्यमंत्री थी, मैं एमएलए था, क्वेश्चन में मेरे पास जवाब है, उस टाइम दिल्ली सरकार के स्कूलों में एनरोल्ड बच्चे थे 13 लाख, और जब शीला जी छोड़कर गए थे तो एनरोल्ड बच्चों की संख्या हो गई थी 2014-15 में 16 लाख। 2000 ये डाटा है, इसको आम आदमी पार्टी कभी भी मैं चैलेंज करता हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मेरी बातों को ये कंडेम कर दे, मुझे झूठा साबित कर दे तो। 2015 में जब ये आए तो एनरोल्ड बच्चे रहे 15 लाख, 1 लाख कम हो गए, और आज जो बच्चे हैं वो बढ़ने चाहिए थे। दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ थी तब, आज 3 करोड़ हो गई है, और उस टाइम 2009 से जो बच्चे 13 लाख से लेकर और 16 लाख पहुंच गए थे, वो 3 लाख बढ़े थे। अगर उन 5 साल के अंदर 60-70 हजार बच्चे हर साल बढ़े हैं, पॉपुलेशन 3 करोड़ हो गई। आज तो बच्चे 20 लाख होने चाहिए थे सरकारी स्कूलों में, लेकिन बच्चे हैं आज भी 15 लाख 1 हजार, 15.1 लाख हैं आज भी। ये डाटा है, ये इसको कोई खा नहीं सकता, ये गर्मी में फैल नहीं सकता, सर्दी में सिकुड़ नहीं सकता। एक तो ये भ्रष्टाचार है जो झूठी रिपोर्टिंग करने के बाद कहां से न्यूयॉर्क टाइम में दिखाते कि देखो हमारे बच्चे पब्लिक स्कूलों को छोड़कर नहीं आ रहे हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में भी कम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। नंबर 2, पब्लिक स्कूलों के अंदर जो रेशो थी स्कूलों की बच्चों की, वो 31% थी 2015-16 में। जो टोटल रेशो के बच्चे 31% पब्लिक स्कूलों में पढ़ते थे, आज वो रेशो बढ़कर 43% पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, 43%। ये ध्यान देने वाली बात है जी। दूसरा मैं आना चाहता हूं बिल्डिंगों के ऊपर। अभी जो कह रहे हैं ग्रेटर क्लास की बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये बदरपुर का स्कूल है। 12 अप्रैल को मेरे सोशल मीडिया पर, ये आप कैमरे पे दिखा सकते हैं, 12 तारीख को मेरे सोशल मीडिया पर फेसबुक पे लाइव डाला हुआ मैंने। ये जमीन पर टाट की पट्टी पर बच्चे बैठे हैं, ये इनको दिखा सकते हैं। बदरपुर का स्कूल है नंबर 1, ये स्कूल है इनका वर्ल्ड क्लास। ये 10 जून की 2022 की फोटो है, भाटी माइंस का स्कूल है। गरीबों के असलियत जहां बच्चे बैठते हैं, जहां कहते हैं बच्चों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। ये उसके बाद में तीसरा स्कूल दिखाता हूं इनको मैं, आयानगर, जो आयानगर गांव है अर्जुनगढ़, ये उसकी फोटो है अर्जुनगढ़। कल मेरे साथ आपका, अब ये बुलाएंगे, गौरव जी इनके ट्रैप में फंस गए। गौरव जी को कहना चाहिए था कि मैं स्कूल में लेकर चलूंगा, वो तो मालिक थे। गौरव जी को कहना चाहिए था मैं स्कूल में लेकर चलूंगा, और गौरव जी सौरभ जी को लेकर जाते तो ग्रेटर क्लास में पब्लिक सरकारी स्कूल दिखाएंगे क्या? ये स्कूल की है तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी, ये तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी फोटो है, इनमें सब पे डेट है। राजनीति छोड़ दूंगा अगर एक डेट या एक पिक्चर गलत हो जी, नंबर 1। दूसरा भ्रष्टाचार है इनके कंस्ट्रक्शन को लेकर। इन्होंने दिल्ली के अंदर 29 जोन बने हुए हैं, 23 नंबर जोन के अंदर इन्होंने तय किए 212 कमरे बनवाने। 212 कमरे बनवाने के लिए सिसोदिया साहब ने बिड फ्लोट की। बिड फ्लोट करने के बाद बिड में जो एस्टीमेट बना 27 करोड़ रुपए का आया। बिड जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ली गई थी वो बिलो 40% ली गई। बिलो 40% का मतलब है 18 करोड़ में कमरे बनने थे। 15, 16, 2 साल लगातार कमरे नहीं बन पाए। जब 16 में कमरे नहीं बन पाए, रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, सरकार ने बनाए, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, कि जो 100 करोड़ से ज्यादा का टेंडर होगा वो टेंडर कैबिनेट में जाएगा,
वरना एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी है, उसमें बिलो 100 टेंडर उसमें क्लियर होते हैं। 16 में जब कमरे नहीं बने, इन्हीं सिसोदिया साहब ने उसी कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा थोड़ा सा फाइन क्वालिटी हम उनकी करना चाहते हैं, 27 करोड़ रुपए बढ़ाकर 54 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, बगैर बिड डाले, बगैर टेंडर डाले। अगर वो भी टेंडर डाला जाता तो वो भी बिलो में आता। जब पहला टेंडर 40%, बिधूरी साहब, वो प्रूफ की बात है, वो जब जांच होगी वो जब जांच होगी सब प्रूफ हो जाएगा। मैं अक्षय मराठे जी को भी, जो स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, उनको भी इस कॉन्वर्सेशन में लेके आना चाहूंगी। अक्षय मराठे जी, द फैक्ट इज, द क्वेश्चन दैट द बीजेपी इज रेजिंग, नंबर 1, आप लेके गए द पॉशेस्ट एरिया इन दिल्ली, इफ आई मे यूज द क्लीशे टर्म, in South Delhi, in GK, you took him to a school in GK. अगर आप जो 3-4 स्कूल बिधूरी साहब कह रहे हैं उधर लेके जाते तो असलियत का पता चलता। बिधूरी साहब कह रहे हैं कि वो राजनीति छोड़ देंगे अगर आप उनको रॉन्ग प्रूव कर दें। नंबर 2, कि एक तो आपने उन्हें बुलाया, ऊपर से वहां पर जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर काडर थे, आपने उनको एम्बुश किया, इसीलिए उनको जाना पड़ा। अब मैं एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके दर्शक हो या मैं, मुझे दिल को बड़ा सुकून महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को आज शिक्षा नीति के ऊपर बहस करने को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने मजबूर कर ही दिया। तो ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आज के जो आप वीडियो दिखा रहे थे, सौरभ भारद्वाज जी और गौरव भाटिया जी जो भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, उनके बीच में जो बहस हुई, वो ग्रेटर कैलाश के इलाके में इसीलिए हुई क्योंकि सौरभ भारद्वाज जी ग्रेटर कैलाश के विधायक हैं और ये रमेश बिधूड़ी से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। तो ये कहना कि ग्रेटर कैलाश क्यों गए, ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप चाहे तो किसी और विधायक के साथ आप चैलेंज कर लेते। कोई आम आदमी पार्टी के तो 62 विधायक है, आप किसी भी विधायक को लेकर उनके इलाके में ले जाइए। हर इलाके में नए नए स्कूल बने हैं, हर इलाके में नए नए क्लासरूम बने हैं। आपने खुल के बोला, इनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। दूसरी बात, अब ये जो कहते हैं ना भाजपा वाले कि सरकारी स्कूलों के क्लासरूम बनाने में आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से 2015-16 में जुड़ा ही इसीलिए था क्योंकि मैं शिक्षा नीति पे काम करना चाहता था। तो मैं इस विषय को बहुत अच्छे से गहन तरीके से समझ चुका हूँ। जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार बनी दिल्ली में, तो दिल्ली में केवल 10 से 12,000 क्लासरूम थे और जो दिक्कत होती थी दिल्ली में, स्कूलों में बच्चों को बैठने की जगह नहीं होती थी। बच्चे जमीन पे बैठते थे, उनके पास क्लासरूम में एक ही बेंच पे 3-4 बच्चे बैठते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी। हमने ये किया, उन्हीं स्कूलों में हमने 12,000 नए क्लासरूम केवल पहले 5 साल में बनाए। 12,000 नए क्लासरूम बनाने का क्या मतलब होता है? एक स्कूल में अगर आप 50 क्लासरूम मान ले तो वही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्कूल की कैपेसिटी कितनी ज्यादा बढ़ा दी आम आदमी पार्टी ने। ये लोग बार बार कहते हैं नया स्कूल दिखाओ, नया स्कूल दिखाओ, नया स्कूल दिखाओ। अरे भाई, जब हजारों नए क्लासरूम बन रहे हैं तो उसका मतलब स्कूल की कैपेसिटी तो बढ़ रही है ना। जो बच्चों को जगह नहीं मिलती थी बैठने की, वो जगह तो बढ़ रही है ना। तो ये जो बीजेपी वालों का आरोप है, ये वहीं पे फ्लैट हो जाता है। तीसरा आरोप, उनका आरोप है कि एनरोलमेंट घट गया दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। मैं आपको बताता हूँ, 2015 से पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं होती थी दिल्ली में, तो एक शिक्षा का घोटाला होता था क्योंकि उस समय एनरोलमेंट बढ़ाई जाती थी और एनरोलमेंट के नाम पे बहुत सारा पैसा स्कूलों को आवंटित किया जाता था और जो भ्रष्टाचार में चला जाता था। हमने ये किया, हमने ऑडिट कराया सारे स्कूलों का, हमने देखा कि कितने स्कूलों में एक्चुअली कितने बच्चे आते हैं, उसके हिसाब से हमने पैसा देना शुरू किया। उससे एनरोलमेंट शुरू में कुछ साल के लिए थोड़ी सी घटी, लेकिन मैं आज का डेटा आपको बताऊं तो 2015 के मुकाबले 7 लाख ज्यादा बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो आपको फिगर बता रहे हैं ना, वो आपको 2019 का बताएंगे। अक्षय जी, अक्षय जी, आपने गौरव भाटिया जी को बुलाया और उनको हैकल किया। देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज तक कभी भी किसी भी वायलेंस में कोई हिस्सा नहीं लिया। आप मुझे बता दीजिए अगर हो तो उदाहरण कि हमारे किसी विधायक, किसी नेता पे कोई एफआईआर हो किसी के खिलाफ कुछ मारपीट करने की। ये भाजपा का कैरेक्टर है, हमारा कैरेक्टर नहीं है। आप दिखा दीजिए गौरव भाटिया जी के शरीर पर, उनके गाड़ी पर कोई भी इतना सा भी कोई स्क्रैच आया हो आम आदमी पार्टी। वर्बल हैकलिंग। अक्षय जी, चलिए, बिधूरी साहब एक पॉइंट फ्रेज करना चाहते हैं, देन आई विल कम टू यू। बिधूरी साहब बोलिए, आप एक रिबटल करना चाहते हैं, बताइए। देखो, पहले तो ये सबसे बड़ा झूठ बोल गए कि 60 लाख बच्चे ज्यादा हैं। नंबर 1, 2016 में एजुकेशन का बजट था 3,100 करोड़ रुपया।
आज बजट जीएसटी के कारण बढ़ने के कारण 78,000 दिल्ली का बजट, एजुकेशन का बजट है 5,400। इन्होंने, केजरीवाल साहब ने कहा था 500 नए स्कूल बनाऊंगा, जो इन्होंने कहा है अभी कि स्कूलों की शॉर्टेज थी, इन्होंने लॉलीपॉप दिया 500 बनाऊंगा। मुझे ये इलाके का नाम लिखकर 50 नई बिल्डिंग कहां बनी है, 50 बता दे, 50, अगर घोटाला नहीं है तो। नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी कह रहे हैं कि गौरव, हम अभी मुझसे आज तक पे बैठाने के लिए मेरी कंडीशन थी कि आम आदमी पार्टी का लेजिस्लेटर कोई हो या कोई लीडर हो, एमपी हो, बैठे, मैं बैठूंगा, मुझे प्रॉमिस किया गया। लेकिन आप सामने लाके कौन बिठा दिया, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने जो 5 स्कूल दिखाए, 5 अलग अलग एमएलए के इलाके के दिखाए हैं। अब इन्होंने कहा ना हम और एमएलए के दिखा दे, अलग अलग एमएलए के दिखाए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके ऑन रिकॉर्ड ये बोलें कि इनकी क्या सजा होगी कि अगर ये एनरोल ठीक नहीं होगा। पहले तो ये एक्साइज पॉलिसी से भटकाने के लिए गौरव जी ट्रैक में आ गए, हमें एजुकेशन पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, ये एक्साइज पॉलिसी का जवाब दें। ये बार बार जो नौटंकी करते हैं, कभी कहते हैं हमें खरीद लिया गया, ये केवल एक्साइज पॉलिसी से लोगों का दिमाग और मीडिया डाइवर्ट हो जाए कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से जी। तो एजुकेशन पॉलिसी, मैं आज भी एजुकेशन पे डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठा था ना, मुझे कहा गया था। मुझे लगा हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कंप्लेंट की है कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसलिए आज मेरे से बात की जाएगी। लेकिन जब आपने एजुकेशन पॉलिसी पर शुरुआत कर दी, मैंने उसका जवाब दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जॉन 25 और जॉन 29 में भी इसी प्रकार से 200 करोड़ रुपए के इन्होंने 1600 कमरे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्या ये बताएं 1600 कमरे गिनवा दें, आज तक को दिखा दें। 1600 कमरे आज तक बनाए इन्होंने, वो 25 जोन और जोन में कमरे कम बने, और उस टेंडर को भी उसी प्रकार से बगैर उसके ले जाए सिसोदिया ने उनको डबल अमाउंट देकर 200 करोड़ रुपया फालतू दे दिए जी। ये घोटाला नहीं है तो और क्या है जी? आंसर करने दीजिए, अक्षय मराठी जी को आंसर करने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं इनके स्कूलों पर एक लास्ट क्वेश्चन, मैं लास्ट, मुझे सुन लीजिए प्लीज। ये मुझे बताएं 1000 स्कूल है इनके, एमसीडी के 1600 स्कूल हैं, ये बताएं प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है 750 स्कूलों में प्रिंसिपल। जब स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं होगा तो उनको कौन एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा? आज जो बच्चों की एब्सेंट रेट है वो 2017 में थी 40%, 2018 में थी 55%, आज 2022 में एब्सेंट रेट है 61%। जो ये कह रहे हैं बोगस एनरोल होते थे पहले, आज भी बोगस एनरोल है, और आज भी ये रिकॉर्ड आप मंगाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, मेरे आंकड़े अगर गलत हो, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं उठाकर फेंक दूंगा राजनीति को। बिधूरी साहब मेरा बिग क्लेम, बहुत बड़ा, अच्छा अक्षय मराठी जी काफी बड़ा क्लेम है कि जो ये आंकड़े आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये आंकड़े गलत हुए तो ये राजनीति छोड़ देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो वैसे ही खत्म हो चुकी है दिल्ली में, तो उनको छोड़ना है तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और वो जहां तक बात एमपी तो सारे क्या बात कर रहे हैं अक्षय मराठी जी, सारे एमपी तो भारतीय जनता पार्टी के ही है ना। कॉर्पोरेशन में इनको हराया, भाजपा ने सांसद में इनको हराया, और जहां भी चुनाव हुए वहां भाजपा को नहीं हरा पाए। उत्तराखंड में हम जीते, उत्तर प्रदेश में हम जीते। बिधूरी साहब इनको आंसर करने दीजिए, आपने सवाल पूछा है। हम, इन्होंने हराया शीला जी को, अक्षय मराठी जी पंजाब की कांग्रेस को जी, ये भ्रम ना पाले। बिधूरी साहब, पार्टी का अंतिम समय है ये। बिधूरी साहब इनको बोलने दीजिए, कैन आई जस्ट गेट अक्षय मराठी सर, इनको बोलने दीजिए, ये आप ही का जवाब देना चाह रहे हैं। चलिए अक्षय मराठी जी प्लीज आंसर। मैं दोबारा कहना चाहता हूं, इनकी बौखलाहट देखिए मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि शिक्षा नीति पर इनकी जो बताइए कौन सी जगह स्टेट में हराया, भाजपा को कहीं नहीं हराया। अक्षय मराठी सर बीच में अगर आप बोलेंगे ना आपकी सुन पाएंगे ना हम इनकी सुन पाएंगे। अक्षय मराठी गो अहेड, आंसर दोस क्वेश्चंस। मैं एक एक करके वापस से सारे सवालों को जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने उनका सबसे पहला सवाल ये था कि जो 500 नए स्कूल बनाने थे वो नहीं बनाए और हम झूठ बोल रहे हैं। मैं उनको दोबारा से कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली के हर इलाके में जो 12,000 नए क्लासरूम बने हैं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे आप अगर वायलेट लाइन मेट्रो की लेते हैं ना, तो फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, तो आपको उस मेट्रो से निकलते हुए नीचे की तरफ सरिता विहार के स्टेशन के पास में आपको एक बड़ा सा नया सरकारी स्कूल का बिल्डिंग दिखेगा। अगर पिछले 5 सालों में वो बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बात यह है कि दिल्ली के लोगों ने उनकी आंखों के सामने ये सारे स्कूल बनते देखे हैं। तो आज भाजपा जितना मर्जी झूठ बोल ले, उसका कोई परिणाम ही नहीं हो पा रहा, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं हो पा रहा लोगों के माइंड में। तो इसीलिए आज की जो बौखलाहट दिख रही है वो हमें सामने आ रही है भाजपा वालों की।
दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं कि इतने क्लासरूम बनने थे, इतने बने, इतने टॉयलेट बने थे, इतने बने, आप मुझे ये बताइए। कैन आई जस्ट गेट अक्षय मराठे? सर, इनको फिनिश करने दीजिए। आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, यू आर ऑल्सो जीरो। सर, इनको बोलने दीजिए। आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, क्या खोगे? मेरे पास खोने के लिए चैलेंज कर रहा हूं। आप एक लिस्ट जारी कर दीजिए। कुछ भी नहीं है, लिस्ट जारी कर दीजिए ना। मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है। आप बहुत बड़े हैं मेरे से, आप कृपया करके थोड़ी इज्जत से बात करें। आप जारी कर दीजिए, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। चलिए, एक चीज बिधूरी साहब, देखिए चाहे कोई कहां से भी आए, इज्जत तो बनती है सर। आप सब एक दूसरे को इज्जत दीजिए। मान जाएंगे सर, ठीक है, ओके। नाउ अक्षय मराठे, व्हाट मिस्टर बिदूरी सेइंग इज कि आप वो जो 50 स्कूल हैं, जो नई बिल्डिंग बनी है, जो आप कह रहे हैं, वो आप एड्रेस इनको दे दीजिए और ये राजनीति छोड़ देंगे। इनका सवाल ये है। मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। देखिए, हर स्कूल में हाँ, बस सर इनको बोलने तो दीजिए। कैन आई जस्ट गेट अक्षय मराठे? यस अक्षय मराठे, गो अहेड। मैं आपको ठीक से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या होता है, दिल्ली के हर स्कूल में एक बड़ा सा पुराना ओल्ड ब्लॉक होता था और एक प्लेग्राउंड और काफी बड़ा एरिया होता था, क्योंकि पहले स्कूल बड़े एरिया में बनते थे। हमने ये किया कि हमने उस ओल्ड ब्लॉक के साथ साथ एक नया ब्लॉक खड़ा कर दिया उसी के साथ में, और उस ओल्ड ब्लॉक के कमरों को भी बेहतर बना दिया। तो ये जो कहते हैं ना एड्रेस बताओ, आप किसी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में अंदर घुस के देखिए तो सही। अंदर जाके आपको नया ब्लॉक दिखाई देगा, आपको पुराने ब्लॉक के कमरे दिखाई देंगे। आप देखिए, ये सारी चीजें आंखों के सामने है। आप देखना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता तो देख रही है। 16 लाख बच्चे दिल्ली के घर में नहीं, 16 लाख बच्चे ये स्कूलों में जाकर ही फोटो 16 लाख बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं। उनके माँ बाप हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग को जाते हैं। वो आंखों से देखते हैं पेरेंट्स कि उनके स्कूलों का कैसा हाल होता था और आज कैसा हाल है। देखिए, या तो आप बोले या मैं बोलूं, दोनों एक साथ बोलेंगे तो चलिए, ओके। अब ये टाइम भी खत्म हो गया है, डिबेट का टाइम भी खत्म हो गया है। बिदूरी साहब, आपने बहुत सारे सवाल रेज किए हैं। आपने एक और क्लेम किया है स्टूडियो में कि अगर जो आपके सवाल हैं, अगर वो गलत निकले तो आप राजनीति छोड़ देंगे। आपने स्कूल्स की फोटो भी दिखाई है। देखते हैं कि ये स्टूडियो से निकलकर आगे जाकर आपको इसका जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। आपने आज चैलेंज किया है, कल आम आदमी पार्टी ने चैलेंज किया था बीजेपी को स्कूल देखने के लिए, और आज आपने चैलेंज थ्रो किया है आम आदमी पार्टी को। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू कीप अ कीन आई ऑन ऑल डेवलपमेंट्स, बिकॉज ट्रस्ट अस, दिस इज ओनली गोइंग टू गेट fiercer as the days go by. Thank you, our panelists, for joining us.